So, for infectious diseases, in this video, we are going to talk about effects of malaria and cholera. We are going to talk about their causative agents, their vectors, their mode of transmission, and their treatments. So, let's have a look on infectious diseases, which are malaria and cholera. So, let's flip the screen. So, for today's class, my dear students, we are going to discuss what is a transmissible disease and how a pathogen is passed from host to another organism. Then we are going to talk about the ways, the methods by which these infectious agents are transferred from one body to another body. Then we will discuss the role of mosquito, and we will talk about malaria and its life cycle. And later on, we will talk about cholera and how this cholera spreads. We'll talk about its toxin, and we have already studied the effects of excessive use of alcohol and tobacco smoke in the last chapter that we designated as drugs. And yes, so first things first, let's talk about the infectious disease. There is a word infection. First, we need to understand what does this word represent? Infection. Infection is actually introduction of some lethal foreign pathogen in the body, and not only the introduction, but when this pathogen starts harming your body cells, it is called infection. A person is said to be, that person is said to be infected when he is having some lethal pathogens in his body, and these pathogens starts harming their body. So in such condition, that person is said to be diseased. This person is said to be in disease condition. Disease condition. Now let's talk about diseases. What is a disease? Disease is such a condition in which your body behaves abnormal. Abnormal behavior of body. Now these diseases, there can be a number of types of diseases actually. Like for instance, there are psychological diseases. And yet some disease conditions are associated with the microorganisms. Microorganisms or viruses. Some of you may be amazed, may get amazed by knowing this कि भाई सर ने जब ये लिखा है माइक्रोऑर्गेनिजम्स और viruses, तो सर ने ये और वायरसेस क्यों लिखा है? Because viruses are not organisms at all. Viruses are not organisms at all. तो अब हम पहले जरा ये बात करते हैं कि ये डिजीज कंडीशन के अंदर हमारे पास ये जो इनकी ट्रांसमिशन है ये किस तरीके से होती है. तो बेटे हमारे पास दो तरीके हैं जिसके जरिए इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द अदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो कैसे हो सकता है? पर्सन टू पर्सन, जिसके अंदर आपकी रेगुलर मीटिंग या
सेक्सुअल एक्टिविटी एटसेट्रा हो सकती है। और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या हो सकता है? वाया वेक्टर, ये ट्रांसफर वाया वेक्टर हो जाए, या वाया एबायोटिक फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, you are touching a door knob and you had viruses in your hands or bacteria in your hands, and that same door knob is touched by another person. अभी वेक्टर्स के ऊपर तो हम डिटेल बात करेंगे ना, कि वेक्टर्स के अंदर हम इसकी वेक्टर की सबसे बड़ी एग्जांपल पढ़ने वाले हैं मलेरिया की। और मलेरिया के अंदर जो वेक्टर है वो क्या होता है? मॉस्क्वीटो। वेक्टर के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियर। वेक्टर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियर। और एबायोटिक फैक्टर में ये पहला फैक्टर है डोर नॉब। आपने किसी दरवाजे को पकड़ा, दरवाजा खोला, दरवाजा बंद किया, किसी दूसरे बंदे ने भी उसको हाथ लगाया, वहां से उसको लग गया। या आपने कोई किचन यूटेंसिल्स यूज कर लिए, आपका एक ग्लास था, आपने उस ग्लास में वाटर पिया और पानी शानी पिया, ड्रिंकिंग की, और किसी और ने उसी ग्लास से ड्रिंक कर लिया, तो उसको भी ये एजेंट लग सकता है, उसको भी ये डिजीज लग सकती है। सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के मेथड्स हैं इन्फेक्शियस डिजीज। हमें इन मेथड्स के अंदर सबसे पहले, या इन डिजीजेस के अंदर सबसे पहले जिस डिजीज को अंडरस्टैंड करना है, नेम ऑफ दैट डिजीज इज कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था जी, मैला एरिया। मैला एरिया, मैला मीन्स बैड and area means air. So initially people used to think कि ये जो हमारा मलेरिया है ना, ये गंदी हवा में सांस लेने से हो रहा है। वो ये समझते थे कि गंदी हवा में सांस लेने से मलेरिया हो जाता है। इनिशियली उनको ये लगता होता था। अच्छा जी, बाद में पता चला कि मलेरिया जो डिजीज है, इसमें आपको तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रहे। नंबर वन, कि इस डिजीज का होस्ट कौन है। नंबर टू, इस डिजीज का वेक्टर कौन है। नंबर थ्री, इस डिजीज का पैथोजन कौन है। होस्ट, होस्ट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच इज इफेक्टेड। वेक्टर, द ऑर्गेनिज्म विच carries the microorganism, and pathogen is a disease causing agent। अब जरा देखते हैं कि मलेरिया के केस में ये तीनों चीजें क्या क्या है। मलेरिया का होस्ट है ह्यूमन बींग्स। मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और इसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम। इसका पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम। अब जरा हम मलेरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है? बेटे, ये जो आपके पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है ना, इसकी बहुत बड़ी चोंच होती है। ये इसके मैं पर बना रहा हूं, और ये इसकी बॉडी है, ये इसकी टांगे। दिस इज अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। व्हाट हैपेंस इज कि जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी की स्किन सरफेस पे बैठती है, तो यहाँ नीचे से ब्लड वेजल्स जा रहे होते हैं, जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, या रेड ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं। वहां से शी सक्स ब्लड। ये ब्लड मील लेती है बेटा, ब्लड मील। ब्लड को सक करती है,
और ब्लड को सक करती है जब ये, तो प्लाज्मोडियम जो यहाँ हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जिसको मैं इस ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूं, ये प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू हर। तो पहले इसने एक ऐसे बंदे को काट लिया, पहले इसने एक ऐसे बंदे को काट लिया जो ऑलरेडी बीमार था। ये बंदा था जो ऑलरेडी बीमार था, ऑलरेडी इट हैड मलेरिया। उसके बाद बेटे ये इसका ब्लड चूस के जब किसी ऐसे बंदे के पास जाएगी जो हेल्दी था, परफेक्टली हेल्दी था, जब ये मॉस्किटो इसकी बॉडी पर जाकर बैठेगी तो ये इसकी बॉडी में भी पैथोजन ट्रांसफर कर देगी। यानी क्या ट्रांसफर कर देगी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो उसको ऑलरेडी मलेरिया था एंड ही वाज इनिशियली हेल्दी। नाउ दिस पर्सन इज आल्सो गोइंग टू गेट मलेरिया। अब इसको भी मलेरिया हो जाएगा। अब इसकी जो एहतियात है वो क्या है कि व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स टू इरेडिकेट मलेरिया, कि आप जो वेक्टर है उसका कांटेक्ट दूर कर दो अपने से। नंबर वन, यूज insecticides, यूज स्प्रे ओवर वाटर बॉडी। अच्छा जी, यूज नेट्स ओवर विंडोज, cover your bodies, use thin या don't display yourself in dawn and dusk। ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके जरिए आप मलेरिया से बच सकते हैं। तो मलेरियल सिम्टम्स जो है वो क्या होती है? व्हाट आर द मलेरियल सिम्टम्स? जब किसी को मलेरिया हो जाता है बेटे तो उसको रिदमिक फीवर आता है। रिदमिक फीवर, फॉर एग्जाम्पल, उसको हो सकता है 24 आवर्स के बाद, या 12 आवर्स के बाद, या 48 आवर्स के बाद उसको बुखार चढ़ जाए। Now we will talk about the mechanism how plasmid affects it. How plasmodium affects it, affects its host. होता ये है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है, प्लाज्मोडियम हमारे रेड ब्लड सेल में चले जाता है। जब ये हमारे रेड ब्लड सेल में एंटर होता है, वहां जाकर ये बेतहाशा ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इतनी ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट करता है, पहले नंबर पर तो कंसीलमेंट कर लेता है, कुछ जाके छुप जाता है। सो वी कॉल इट पैथोजन कंसीलमेंट, पैथोजेनिक कंसीलमेंट। और उसके बाद इट बर्स्ट्स ओपन दिस रेड ब्लड सेल, it bursts this red blood cell, and then these plasmodiums, they are ready to attack
the other red blood cells that are going to come in their contact. फिर ये क्या करते हैं कि नए रेड ब्लड सेल्स को जाकर अटैक करना शुरू करते हैं और आहिस्ता 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 एक सिचुएशनल एनीमिया करवा देते हैं, एनीमिया, जिसमें इंसान को रेड ब्लड सेल्स की, जाहिरी तौर पर रेड ब्लड सेल्स की कमी वाक़या हो जाती है. So this is about all the information about malaria that you guys need to know. और ज्यादातर इसकी जो प्रेवलेंस है अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में जो मलेरिया की जो डिजीज है ये ज्यादा पाई जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉलरा. ये कॉलरा क्या है? कॉलरा बेसिकली बेटे एक वाटर बॉर्न डिजीज है. हाँ, ये इतना तो पता होना चाहिए ना, रेड ब्लड सेल जब खत्म होते चले जाएंगे तो इंसान को एनीमिया हो जाता है, इंसान एनीमिक कहलाता है. नाउ कॉलरा इज कॉज्ड बाय, इसका जो पैथोजन है वो एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी. विब्रियो कॉलरी. और ये जो विब्रियो कॉलरी है बेटे ये बेसिकली एक वाटर बॉर्न डिजीज कॉज करता है. वाटर बॉर्न डिजीज. वाटर बॉर्न कैसे? वो ऐसे कि अगर आपके वाटर सप्लाई में सूवेज का पानी आ जाए, पैथोजन कंसीनमेंट, व्हेन पैथोजन हाइड्स हिमसेल्फ इनसाइड अ बॉडी सेल, मैं ये लिख देता हूं यहां पर, व्हेन पैथोजन hides himself in host's body cells, it is called pathogen concealment. अच्छा, कॉलरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज है और ये कैसे फैलती है? आमतौर पर पुअर सैनिटेशन जहां पर होती है, जहां पर पुअर सैनिटेशन होती है तो वहां प्यारे बच्चों ज्यादातर आपको कॉलरा जैसी बीमारियां लग रही हैं. अब होता क्या है, जहां पुअर सैनिटेशन होती है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई is mixed with sewage waste, तो वहां लोगों को कॉलरा होता है. अब कॉलरा के अंदर होता क्या है? कॉलरा में प्यारे बच्चों आपका एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है एंड दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड कोलेराजन. कोलेराजन. ये कोलेराजन क्या करता है? ये कोलेराजन बेटे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी मिनरल अपटेक इज कॉम्प्रोमाइज्ड. उनकी जो मिनरल अपटेक है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और इंसान अपनी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं कर सकता एंड पेशेंट is unable to retain water in their body, results in, this condition results in loose motions and severe dehydration. Severe dehydration. अच्छा जी, जब ये सीवियर डिहाइड्रेशन होती है
तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसके लिए जो हम इलाज इसका करते हैं बेटे, दैट इज कॉल्ड ओ आर टी। ORT stands for oral rehydration therapy। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इसके अंदर आप वाटर इन कॉम्बिनेशन विद शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इनटेक करते हैं। ओआरएस वाला पानी पीते हैं ना आप, और आप ओआरएस वाला पानी पीते हैं पीते हैं पीते हैं ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन खत्म हो जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड electrolyte balancing। दिस इज हाउ वी डील विद कॉलरा। अच्छा, ये सारी की सारी बातें हम अब डिस्कस कर चुके हैं और हमारा यहाँ पर ये चैप्टर एंड हुआ है बेटे।